तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द रिविजन of redox reaction. We know that redox reaction is a combination of two reactions. First is reduction, another is oxidation. Both of the reduction and oxidation reactions are occurring simultaneously. Means only reduction or only oxidation reaction doesn't take place. Both are filler to each other. मतलब रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो ऐड कब होंगे? whenever somewhere electrons are released and both are in contact. Okay, so first definition, and here the required definition is, when electron is added, such reaction is known as reduction, and electron is removed or released, then this reaction is known as oxidation. Next definition that is required, we know that there are many definitions based on addition of hydrogen, removal of oxygen, and addition and removal of hydrogen and oxygen both. Okay, but here only two definitions are required, so I am writing only two. So if the oxidation number of an element increase or decrease, then reduction. Good. So when oxidation number of element decreases, then such reaction is known as reduction. And if oxidation number of an element increases, then it is known as oxidation. Again, addition of electron is a reduction, and decrease in oxidation number of an element is also a reduction reaction. Similarly, removal of electron or increase in oxidation number of element, both are known as oxidation reaction. Again, both the reactions are occurred simultaneously, both are the filler to each other, and that's why here both of the reactions are in combined form. That's why here we call this reaction redox reaction. So red is coming from this part and ox is coming from oxidation. Okay, so this reaction is known as redox reaction. Now here we have to learn the reaction when the redox reaction taking place in one vessel. तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, सपोज अ ग्लास beaker is taken, a beaker made up of glass is taken. Then here we are taking CuSO4 solution. Okay, and here Zn strip is dipped into the solution of CuSO4 aqueous. Okay, CuSO4 aqueous. So zinc is more reactive than copper according to reactivity series. ओके, सो अब यहाँ पे Zn स्ट्रिप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप की गई है. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू अवर रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Cr, Fe, Cd, CO, Ni, Sn, Pb, Cu, Ag,
and then AU. Yes? Okay, तो ये reactivity series है. So here we can see that zinc is more reactive than copper. See again, zinc is more reactive than copper. और यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? तो चलो कंडीशन अब आपको याद रखनी है. When more reactive metal is in solid form, and if it is in contact with less reactive metal ion, then only a redox reaction is possible. मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन कब होगी? तो जब ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट वो सॉलिड में होना चाहिए और लेस रिएक्टिव जो हो ना वो आयंस के फॉर्म में होना चाहिए. देन आफ्टर अ रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल. तो रेडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए ये रूल आपको याद रखना है कि व्हेन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल, सो दिस इज द फंडामेंटल, more reactive must be in solid form and it is must be in contact with the less reactive metal ion. मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, जो लेस रिएक्टिव हो वो आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है. ओके, तो यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. सो एट दैट टाइम जिंक releases the electrons because it is more reactive. Okay, and here we can see the electrons which are released by zinc will be on the surface of strip. तो वो surface पे ही होंगे. Okay, so electrons have negative charge. How many? 2. So it will attract the positive ion of solution. चलो solution किसका था? CuSO4 का. उसमें कौन से आयंस हैं? Cu2 plus and SO4 2 minus. Okay, so here Cu2 plus ions will gain these 2 electrons which are released by Zn to give the Cu, and here electrons are released, so it is known as an oxidation. Electrons are gained, so reduction. So while writing total reaction, remember that the number of electrons which are released and which are gained must be same. Okay, and here there are. That's why here we can directly add 2 half reactions. So Zn solid plus Cu2 plus aqueous. पहले से हैबिट रखो आयन के नीचे aqueous और मेटल के नीचे solid, and Cu solid are obtained. Okay, and here in actual the solution was of CuSO4, right? So after all we are getting ZnSO4 and Cu solid. तो अगर आप डायरेक्टली ये रिएक्शन देखो तो आपको क्या लगेगा पता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो लगेगी. देख लो कैसे सब्स्टिट्यूशन. Zn और Cu दोनों इंटरचेंज हो गए. देख लो Zn और Cu दोनों इंटरचेंज हो गए, दोनों ने अपनी जगह प्लेस चेंज कर दी. ओके, दोनों की प्लेस चेंज हो गई. देख लो Zn यहाँ पे और Cu यहाँ पे बाहर. ओके, मतलब और जिंक और कॉपर दोनों ने अपनी जगह चेंज कर दी. तो यहाँ पे आपको लगेगा क्या कि ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बस इसके बैकग्राउंड में कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन.
क्योंकि अब जब भी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, नेट रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें आपको तो सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा कि Zn की जगह पे Cu आ गया और Cu की जगह पे Zn आ गया, बट इसके बैकग्राउंड में रेडॉक्स रिएक्शन होती है. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ओके, तो चलो सबका ये क्लियर हो चुका होगा. तो अब कोई भी स्ट्रिप, कोई भी सोल्यूशन में डीप करो तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए पहले तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है. ओके, और सेकंड थिंग, सबका चार्ज पता होना चाहिए. तो चलो अब आपको ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आई एम टेकिंग एल्यूमिनियम प्लेट and it is dipped into the FeSO4 solution. ओके, चलो एल्यूमिनियम की वैलेंसी जनरली क्या होती है बताएं? याद हो तो अपना 11th का 0 लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर सब आयंस का लिस्ट दिया था. 3+, वेरी गुड. और FeSO4 में SO4 का 2- है, दैट्स वाई Fe का 2+. तो जब भी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, पहले तो रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं वो बताओ. एल्यूमिनियम प्लेट इज डिप्ड इनटू द FeSO4 सॉल्यूशन. विल रिएक्शन टेक प्लेस? Yes, aluminum is here and Fe is here. Aluminum is more reactive. Plate means it is in solid. It is a solid. Okay, and FeSO4 means Fe is in ionic form. Both are in contact. So reaction is feasible. चलो इसकी reaction लिखो. तो आपको कितना लिखना है? Oxidation, reduction, okay, then total, and then finally net reaction. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो एल्यूमिनियम प्लेट, एल्यूमिनियम इज इन सॉलिड फॉर्म एंड FeSO4 इज इन एक्वियस फॉर्म. सो एल्यूमिनियम releases 3 electrons. Okay, electrons are released, so it is an oxidation reaction. Now the positive ion of solution, that is Fe2+, it will gain 2 electrons. Electrons are added, reduction reaction, we are getting Fe solid. So in a total reaction, the electrons which are released and which are gained must be same, but here they are not. So oxidation reaction will be multiplied by 2, then 6 electrons, and reduction reaction will be multiplied by 3 to get the 6 electrons. Means 2 और 3 का LCM लिया, that is 6, और फिर उस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. So finally we are getting 2Al solid plus 3 Fe2+, isn't it? Aqueous gives 2Al3+ plus 3 Fe solid. Okay, and net reaction is, in net reaction, in actual the solution was of FeSO4. That's why here we have to write 2Al solid plus 3 FeSO4 to give Al2SO4 thrice, क्योंकि अब जो पॉजिटिव आयन है वो Al3+, नेगेटिव आयन तो SO4 ही है, and 3 Fe solid. ओके, अब देखो ऑटोमेटिकली पूरा बैलेंस हो ही गया. 2Al then Al2, 3 FeSO4 मतलब 3 Fe and 3 SO4, तो 3 SO4 and 3 Fe. Equation is balanced. Next one, chromium vessel in which AgNO3 solution is filled. Now chromium की टेंडेंसी है टू रिलीज द 3 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स उसका चार्ज होगा 3+. AgNO3 में NO3 का चार्ज कितना है? NO3 का नाम क्या है?
NO3 का नाम है नाइट्रेट और Ag का चार्ज है 1+, NO3 का 1-। ओके, चलो अब ये सॉल्व करते हैं। So here in oxidation reaction, chromium, first of all reaction is possible because chromium is more reactive and chromium vessel is taken, right, and AgNO3 solution is filled into it. So chromium solid gives Cr3 plus and 3 electrons, and in a reduction reaction, positive ion of solution, that is Ag plus, will gain single electron to give Ag solid. Okay, for writing the total reaction, the number of electrons which are lost and which are gained must be same. That's why reduction reaction is multiplied by 3. Okay, so now number of electrons which are transferred and gained both are same, so that remaining terms are added. Cr solid plus 3Ag plus aqueous gives Cr3 plus aqueous plus 3Ag solid. Okay, so now the net reaction or overall reaction is, in actual the solution was of AgNO3, and these NO3 1- ions are attached with Cr3 plus, that's why we have to write Cr and NO3 thrice aqueous and then 3Ag solid. Okay, next, magnesium plate plus Al NO3 thrice. अब ये ट्राई करो। ओके, तो यहाँ भी देखो रिएक्शन पॉसिबल है ही, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव and aluminium is less reactive. Magnesium is in solid form and AlNO3 thrice means Al is in ionic form. So magnesium solid gives Mg2 plus 2 electrons. This reaction is known as oxidation. In reduction reaction, the positive ion of solution is Al3 plus. It will gain 3 electrons to give Al solid. But whenever we are writing the total reaction, number of electrons which are lost and gained must be same, so that here both of the reactions are multiplied. First reaction is multiplied by 3, second reaction is multiplied by 2. Okay, then we can write total as well as the net reaction. चलो डायरेक्ट अब नेट रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे 3Mg solid plus 2 times AlNO3 thrice. It will give MgNO3 twice. How much times? 3 times. So indirectly we will get 6NO3. Here also 2 3s are 6. And finally 2 Al solid. Okay, so this one is the net reaction. Total भी वो तो easy है. This term gives this term and this term. Okay, तो अब एक fact अब आपको याद रखना है क्या? When redox reaction is possible, then that solution cannot be filled in given metal vessel, because generally we are filling the solution to preserve it. Okay, solution को preserve करने के लिए हम use करते हैं ना. तो अगर redox reaction हो के नया solution, नया हमने लिया था AlNO3 thrice, आपको मिल जाएगा MgNO3 twice due to the redox reaction. तो मतलब हम जनरली प्रिजर्व करने के लिए वो पर्टिकुलर सोल्यूशन फिल अप मतलब स्टोर करते हैं. ओके,
तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है तो फिर वो सोल्यूशन हम प्रिजर्व उस मेटल आयन के वेसल में हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज निकल प्लेट प्लस ZnSO4 solution. So here redox reaction is not possible. Because zinc is more reactive and it is in ionic form, and nickel is less reactive and it is in solid form. Okay, so that condition is not. जस्ट मिनट, कौन सी कंडीशन? हाँ, ये कंडीशन यहाँ पे ऑबे नहीं हो रही. दिस कंडीशन इज नॉट ऑबेड हियर. दैट्स व्हाई हियर रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो चलो अब ये लेवल आपका क्लियर हो चुका है. गुड. तो अब नेक्स्ट लेवल आता है, ध्यान से देखना. यहाँ पे अगर हमने कोई भी स्ट्रिप ली और सोल्यूशन लिया जिससे रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हो, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है और सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना वो इंटरनली होते हैं. तो फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट डेनियल, तो डेनियल सेल फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ बाय द साइंटिस्ट डेनियल. उन्होंने क्या किया कि 2 बीकर्स लिए. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली ट्रांसफर हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्सटर्नल सर्किट में आपको मिले. एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्राई ऑफ डेनियल. और उसकी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट इसका कौन सा पता है? अपनी मोबाइल फोन की बैटरी. उसकी साइकिल भी कितनी होती है? 800 to 1000 टाइम्स हम रिचार्ज कर सकते हैं. ओके, तो डेनियल ने क्या किया था? Zn स्ट्रिप ली और वही सॉल्यूशन में डिप किया, मतलब उसी के पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में. सिमिलरली यहां पे कॉपर स्ट्रिप उसने ली और सॉल्यूशन किसका? CuSO4 का. ओके, और दोनों स्ट्रिप्स गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की. तो यहां पे हुआ क्या? यहां पे गैल्वेनोमीटर से, हाँ, यहां पे आएगा कॉपर सॉलिड. ओके, तो Zn स्ट्रिप, ZnSO4 सॉल्यूशन, कॉपर स्ट्रिप, CuSO4 सॉल्यूशन. तो यहां पे Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. चलो वो तो पता ही होगा आपको. तो Zn undergoes oxidation reaction to give the Zn2 plus and 2 electrons. So now electrons are on the Zn strip. So now these electrons are pressurized by Zn strip. That's why electrons will reach to the copper strip. Now copper strip doesn't get the electron, but copper strip is in the contact with solution CuSO4. So the positive ion of the solution will gain the 2 electrons to give the Cu solid. This reaction is known as reduction reaction. Okay, and here we can write the total reaction very easy. Zn solid plus Cu2 plus. तो देखो आपने जो आगे रिएक्शन लिखी थी उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना वो आपको आउटर सर्किट में मिलता है. ओके, इस कॉपर वायर में आपको यहाँ पे मिलता है. और गैल्वेनोमीटर से हम रिकॉर्ड करते हैं. गैल्वेनोमीटर शोज ओनली द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी जनरली एमीटर फॉर करंट एंड वोल्टमीटर फॉर द वोल्टेज it is used. Both are used. Okay, here just we are using galvanometer. Okay, so again Zn strip in ZnSO4, copper strip in CuSO4, both are attached by copper wire, and this reaction takes place. But here another instrument is added.
because after the oxidation reaction we are getting the Zn2 plus ion which will go into the solution. So solution will become positively charged. Similarly, after the reduction reaction the concentration of Cu2 plus decreases. That's why here the concentration of sulfate ion will increase. That's why here we are using the which instrument? Salt bridge. Or salt bridge is a U-shaped tube, okay, hollow tube, and here NH4NO3 solution is filled. KNO3 is also can be filled. Any solution cannot be filled जिसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो, वही सोल्यूशन इसमें फिलअप किया जाता है. ओके अब अगर हमने Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है तो फिर KCl भी यूज होता है, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोड के टाइम पे हम KCl यूज नहीं कर सकते. क्यों? वरना AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है. AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. पता है ना KSP वाली थियोरी. ओके तो एनी सोल्यूशन कैन बी फिल्ड, but here the transport number of positive and negative ion must be same. Such solution can be filled. So this is the theory of the Daniell cell. तो चलो अब यहाँ पे मैं कुछ facts लिखता हूँ. When Daniell cell is in working condition, फर्स्ट थिंग व्हेन Daniell cell is in working condition तो क्या होगा, ध्यान से देखो. सो फर्स्ट इज मास ऑफ Zn स्ट्रिप. बोलो क्या होगा? डिक्रीजेस. मास ऑफ कॉपर स्ट्रिप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे Zn के खुद एटम्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज होते हैं लेकिन आयन सोल्यूशन में जाएंगे, उतने Zn एटम्स डिक्रीज होंगे, मतलब मास उसका डिक्रीज होगा. यहाँ पे Cu2 प्लस आर कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड. दैट्स व्हाई हियर व्हाट हैपेंस, हियर mass of copper strip will increase. Similarly, concentration of ZnSO4 solution, बोलो, and concentrations of CuSO4 solution. ZnSO4 solution का क्या होगा? Increases. और concentration of Cu2 plus decreases. कैसे? ध्यान से देखो. तो यहां पे Zn सॉलिड Zn2 प्लस में कन्वर्ट होते हैं, तो मतलब यहाँ पे Zn2 प्लस इंक्रीज हो गए. ओके सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स अनदर साइड का है, तो अनदर साइड Cu2 प्लस आयंस गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव द Cu सॉलिड. अब क्या बचा? तो अब बचा सल्फेट आयन. तो वो सल्फेट आयन थ्रू डिफ्यूजन वो जाएगा थ्रू दिस कॉपर, थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज, इट विल गो टू द ZnSO4 सोल्यूशन. और यहाँ पे ऑलरेडी Zn2 प्लस है ही, तो दोनों बैलेंस हो गए. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे कंसंट्रेशन ZnSO4 का बढ़ जाएगा और CuSO4 का डिक्रीज होगा. तो मतलब सिर्फ पानी रहेगा, पूरा सूख नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर तो रहेगा ही, सिर्फ आयंस मूव हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो मूवमेंट सिर्फ आयंस की हो रही है. तो कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 डिक्रीजेस मीन्स इंटेंसिटी, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर. पता है ना CuSO4 सोल्यूशन, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, और ब्लू कलर की इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी. ZnSO4 इज अ वाइट विट्रियॉल, मतलब वो तो कलरलेस ही है, तो उसमें तो कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा. लेकिन यहाँ पे आपको फर्क दिखेगा. ये कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 डिक्रीजेस, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके चलो, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट कहाँ से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, Zn स्ट्रिप टू कॉपर स्ट्रिप. ओके अब Zn को हम बोलेंगे एनोड और Cu को बोलेंगे हम कैथोड, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एनोड,
एनोड मीन्स नेगेटिव और कैथोड मीन्स पॉजिटिव. Copper strip acts as a cathode and Zn strip acts as an anode. Okay, तो flow of electron from anode to cathode, that is from Zn to copper. Flow of current कहाँ से कहाँ? तो copper to zinc, मतलब cathode to anode. ओके, चलो इतना याद रखो. नेक्स्ट, चलो ये फंडामेंटल तो पूरे हो गए. ओके, जो हमें याद रखना था वो. अब ध्यान से देखना. सडनली सॉल्ट ब्रिज is removed from Daniell cell. Then what happens? चलो सॉल्ट ब्रिज हमने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? रिएक्शन फिर भी कंटिन्यूअस चलेगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से होगी, मतलब थोड़ी देर तो चलेगी. तो ध्यान से देखो यहाँ पे Zn स्ट्रिप वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे थे, पता है ना, Zn2+, तो सोल्यूशन बना पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन में Cu2+, सोल्यूशन के पॉजिटिव आयंस आर अंडरगोइंग रिडक्शन रिएक्शन, सो दैट after the oxidation reaction solution will become positively charged, here solution will become negatively charged, and both of the solutions must be electrically neutral. That's why we are using the salt bridge. And if this salt bridge is removed suddenly, so at that time potential will be at zero at that moment, not after some time. रीज़न इज क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो कभी भी ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव तो वो कभी पॉसिबल है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. हाँ, आयोनिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव तो चाहिए ही. मतलब सोल्यूशन सपोज हमने शुगर या तो फिर शुगर नहीं सॉरी सॉल्ट हमने डिसॉल्व कर दिया, तो हम नहीं बता सकते कि चलो भी थोड़ा Na+ हमने अलग से ले लिया, साथ में Cl- आ ही जाएगा और वो भी कंप्लीट प्रोपोर्शन में ही आएगा. Okay, so if salt bridge is removed, then potential मतलब galvanometer will show the zero value. मतलब यहाँ पे क्या होगा? Cell will be stopped. Okay, मतलब सेल फिर वर्क करेगा ही नहीं. अब 10th में आपने पढ़ा है कुछ एक टॉपिक, ध्यान से देखना. ये जो सेल है ना, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. 10th में आपने शायद पढ़ा हो कि एनोड तो पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे मैंने एनोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव क्यों लिखा? बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, another is electrolytic cell. ओके, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग है. यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और ऑपोजिट है, अलग नहीं, वैसे ऑपोजिट ही है. और एनोड और कैथोड की साइन भी यहां पे डिफरेंट है. तो चलो अब ये देखते हैं. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy, and here electrical energy means whenever electricity is passed, at that time cell reaction will occur. कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. ओके, दोनों में प्रिंसिपल्स ऑपोजिट है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड विल बी नेगेटिव, कैथोड विल बी पॉजिटिव. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव. एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड वो अपने आप बन जाएंगे. जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो एनोड, कम रिएक्टिव होगा वो कैथोड. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसे आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे वो एनोड बन जाएगा,
मतलब यहाँ पे एनोड और कैथोड आप डिसाइड करो, उस हिसाब से बनेंगे, जिसको आप डिसाइड करो उस हिसाब से बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंपलसरी ज़्यादा रिएक्टिव ऑलवेज एनोड होगा, कम रिएक्टिव कैथोड होगा। ओके, तो चलो, तो फिर आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रख रहे हैं, इसका पर्टिकुलर रिवीजन करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल्स। ओके, तो चलो, तो फिर आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट।